पडे पडे निधानानि योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति दृष्टिहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा એટલે ખબર છે? હા, શાબાશ, ધરતી, પૃથ્વી એવી છે. બહુરત્ના, ઘણા રત્નો વાળી છે. અહીંયા કયા રત્નોની આપણે વાત કરવી છે? રંગબેરંગી પથ્થરના રત્નોની વાત નથી કરવી, પરંતુ જીવંત વિશિષ્ટ કોટીના આરાધક રત્નોથી પણ આ પૃથ્વી ભરેલી છે. એમાં પણ વિશેષ પ્રકારે વિશ્વ કલ્યાણકર પરમ તારક એવું જીન શાસન, એ તો રત્નોની જાણે ખીચોખીચ ભરેલી એવી ખાણ છે, જેની અંદર એક એકથી ચડે એવા અદ્ભુત અદ્ભુત આરાધક સાધક ત્યાગી તપસ્વી આરાધક રત્નો ચતુર્વિશી છંદની અંદર વિદ્યમાન છે. કહેવાય છે કે રોહણાચલ નામે એક પર્વત આવે છે, જેમાં રત્નોની ખાણ હોય છે. પણ આ જીન શાસન એ પણ વિશિષ્ટ કોટીના આરાધક રત્નોની ખાણ છે. પણ એમાં એ રત્નોને શોધવા માટે શું જોઈએ? ઓલા રત્નોને શોધવા માટે ભાગ્ય જોઈએ, નસીબ જોઈએ. ત્યારે આ આરાધક રત્નોને જોવા માટે શું જોઈએ? દ્રષ્ટિ જોઈએ. પણ કઈ દ્રષ્ટિ? માત્ર ચામડાની આંખ નહીં. કઈ દ્રષ્ટિ જોઈશે એને માટે? કઈ? સમ્યક અથવા દિવ્ય દ્રષ્ટિ, અથવા દિવ્ય દ્રષ્ટિ તો ક્યાંથી કાઢી, પણ અથવા હજી એક શબ્દ, બે અક્ષરનો શબ્દ છે દ્રષ્ટિની આગળ. બે જ અક્ષર, અઢી અક્ષર પણ નહીં, બે જ અક્ષર. હવે સાહેબનું નામ બોલો, શું છે? હા, ગુણ દ્રષ્ટિ જોઈશે. ગુણ દ્રષ્ટિ એટલે જ્યાં જ્યાં નજર પડે ત્યાં ત્યાં દરેક વ્યક્તિમાં કંઈક ને કંઈક રહેલા ગુણો આપણને દેખાય, એના ઉપર ફોકસ થાય, અને એની જો ભરપેટ શું થાય, શું થવી જોઈએ? અનુમોદના થવી જોઈએ. હા, એને માટે ચાર ભાવનાઓમાંથી કઈ ભાવના છે અનુમોદના માટે? ભાવના કઈ? મૈત્રી ભાવના. પછી બીજી ભાવના કઈ છે? પ્રમોદ ભાવના. પ્રમોદ, પ્રકૃષ્ટ મોદ એટલે હર્ષ, રાજી થવું, આનંદિત થવું, બીજાના ગુણોને જોઈને અત્યંત રાજી થવું, એને પ્રમોદ ભાવના પણ કહે છે. એને અનુમોદના પણ કહે છે. અને કરણ કરાવણને અનુમોદન સરીખા ફળ નિપજાયો. આપણે પોતે આરાધના કરીને કેટલી લિમિટેડ કરી શકીશું? શક્તિ લિમિટેડ છે આપણી. હા, પણ અનુમોદના તો જગતના જીવ માત્રના સદગુણોની અનુમોદના થઈ શકે. તો આજે આપણે એવા અમુક દ્રષ્ટાંત જોવા છે કે જે સાંભળતા આપણું મસ્તક અહોભાવથી ખરેખર ઝૂકી જાય, હાથ જોડાઈ જાય, અને સાચા હૃદયથી જો અનુમોદના થાય તો આપણને પણ એટલો જ મહાન લાભ થઈ શકે. જીન શાસ્ત્રમાં કેવી સુંદર આ પદ્ધતિ બતાવી છે કે જેમાં નવા પૈસાનો ખર્ચ નહીં, કાયાને કોઈ કષ્ટ નહીં, જેને માટે જાજી કોઈ યાદશક્તિ કે બુદ્ધિની પણ જરૂર નહીં, અને છતાં અઢળક લાભ કમાઈ શકાય. વિશિષ્ટ કોટીનું પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય અને અઢળક નિર્જરા પણ સાધી શકાય. એવી કોઈ આરાધના હોય તો એ છે અનુમોદના અથવા તો પ્રમોદ ભાવના. ભાઈદર એટલે આ ધર્મનગરી કહેવાય. વેસ્ટમાં 40 દેરાસરો, ઈસ્ટમાં પણ 10 દેરાસરો, નાના મોટા આવા, અને જ્યાં જુઓ તો આજુબાજુ સાધર્મિક અને સેંકડોની સંખ્યામાં સાધર્મિકોના ઘરો હોય એવા ભાઈદર નગરીની અંદર બોલો, તમને ખ્યાલ છે કે એક વિશિષ્ટ કોટીના તપસ્વી અત્યારે પણ વિદ્યમાન છે, જેમણે ગુણ સંવત્સર નામનું તપ કર્યું છે. કયું તપ? ગુણ સંવત્સર તપ. 16 મહિના ચાલે. 16 મહિનામાં માત્ર 73 વ્યાસણા આવે, બાકીના બધા ઉપવાસ આવે. 16 મહિના કેવી રીતે? એક મહિનો એકાંતર ઉપવાસ કરવાના પહેલા મહિને, બીજે મહિને છઠના પાળને છઠ કરવાની, પારણામાં બેઠું, છોલું બોલવું નહીં. ત્રીજા મહિને અઠમના પાળને અઠમ, ચોથે મહિને 4 ઉપવાસના પાળને 4 ઉપવાસ, એમ ક્રમશઃ વધતા 16મા મહિને 16 ઉપવાસના પાળને 16 ઉપવાસ.
આ રીતે 16 મહિનાની અંદર માત્ર 73 વ્યાસના બાકીના કેટલા ઉપવાસ થયા છે? 407 ઉપવાસ. 480 દિવસ ટોટલ જપ ચાલે, એમાં 407 ઉપવાસ એ માત્ર 73 વ્યાસના આવું મહાન ગુણ સંવત્સર તપ ભૂતકાળની અંદર પણ માત્ર 2-3-4 નામો જ સંભળાય છે શાસ્ત્રમાં, અને વર્તમાન કાળમાં પણ 2-4 નામો જ માત્ર આવા સંભળાય છે કે જેમણે આવું મહાન ગુણ સંવત્સર તપ કર્યું હોય. હા, દહીસરની અંદર એક સાવિકા થઈ ગયા, આપણા કચ્છી સમાજના એક સાવિકા, એટલે 10 વર્ષ પહેલા. કયા નામ શું હતું એમનું? ઝવેરબેન, કચ્છ મોડાઈના. એમણે આ ગુણ સંવત્સર તપ કર્યું, પૂરું કર્યું કુદરતી, પણ પારણું થયું ને એક દિવસે એ સ્વર્ગવાસી બન્યા હતા. બીજા એક સોમ તિલક વિજયજી મહારાજ, એમણે પણ મોટી ઉંમરે આ તપ શરૂ કર્યું. લગભગ 13-16 મહિનામાં 13 મહિના થયા, પછી એમનું આયુષ્ય ટૂંકું પડ્યું, એ તપ એટલું અધૂરું રહ્યું. બીજા એકાદ કોઈ સાવિકા આપણા સંભળાય છે કે જેમણે ગુણ સંવત્સર કર્યું. પણ તમારા ભાઈંદરની અંદર આવા એક વિશિષ્ટ તપસ્વી વિદ્યમાન છે. કેટલાને ખબર છે? આંગળી ઊંચી કરો જો. કેટલાએ એના દર્શન કર્યા છે અથવા એનું નામ પણ સાંભળ્યું છે? તમને તો ગઈકાલે અનુભવ દર્શન થયો ને, એનાથી પહેલા નહીં? ભલે એનાથી પહેલા તમે ઓળખતા હતા? अच्छा, चलो एक था अपना करो ना लो, सुनाओ। नरेश भाई। हाँ, चलो हिंदी में बोलता हूँ, भूल गया। हिंदी में प्रवचन देते हैं ताकि जो गुजराती नहीं जानते, हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, सभी लोग समझते हैं। गुजराती तो गुजरात के लोग समझते हैं, इसीलिए हिंदी में अभी हम लोगों ने प्रवचन देने का शुरू किया है। तो ऐसे विशिष्ट तपस्वी अपने भाईंदर में भी विद्यमान है, जिन्होंने ऐसा महान भीष्म तप किया, गुण संवत्सर तप। 480 दिनों में 473, 407 उपवास, केवल 73 व्यास ने, जिनका नाम अभी आपने बताया, नरेश भाई ने क्या नाम बताया? उनकी राशि के इसलिए जल्दी याद रह गया है। नवीन भाई, बाजू की बिल्डिंग में। अच्छा, पास में पड़ोस में रहते हैं, इसीलिए उनको पता है, नहीं तो शायद उनको भी पता शायद होता कि नहीं होता। हाँ, आपके लिए तो बिल्कुल नवीन ही बात है ये, नवीन नाम भी नवीन लगता है। हाँ, नवीन भाई। सरनेम क्या उनकी है? उनकी सरनेम क्या है? नवीन भाई। शाह तो सभी में लगती है भले। तो गुजरात के मेहसाणा जिले के पास में जगुडन नाम का गांव है। जगुडन मूल निवासी वहाँ के, अभी तो कितने सालों से भाईंदर वेस्ट में रहते हैं, जिन्होंने ऐसी महान तपस्या से कुछ साल पहले की। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कितनी बड़ी तपस्याएं की है। आप में से 28 करने वाले तो होंगे, 16 उपवास करने वाले है कोई? मासिक श्रमण वाले है कोई? आंगली ऊंची करो, किसने मासिक श्रमण किया हो? धन्यवाद। चलो 1, 2, 3 भाग्यशाली श्राविकाओं ने मासिक श्रमण की तपस्या की है। लेकिन ये जो नवीन भाई है, इन्होंने 28 के पारने 28 करते हुए वर्षी तप किया है। 28 के पारने 28, पारना में भी व्यासना करने का, छूटा मुंह नहीं रखने का, खुला। हाँ, वर्षी तप किया है। और इसमें आपको हो जाता है कि बात तो और आगे है। और आगे क्या है? 11 उपवास के पारने 11 उपवास, 11 उपवास से वर्षी तप इन्होंने किया है। हाँ, और उसमें भी अंतिम में मासिक श्रवण किया। 28 के पारने 28 के अंत में क्या किया? लगातार 33 उपवास लगातार लास्ट में। और ये 11 उपवास के पारने 11 उपवास के अंत में मासिक श्रवण जैसी तपस्या ये नवीन भाई ने की है। यद्यपि जिन शास्त्र में और भी एक ऐसा दृष्टांत है कि जिन्होंने 16 भक्ते के पारने 16 भक्ता तक किया है। हाँ, 16 उपवास के पारने 16 उपवास से वर्षी तप किया है। ऐसी एक श्राविका रत्न का दर्शन हमने किया है। हम उनसे मिले थोड़े साल पहले शंखेश्वर जी महातीर्थ में। सूरत की एक श्राविका, नाम जिनका है सरस्वती बहन। हाँ, अभी है कि मालूम नहीं, लेकिन थोड़े साल पहले मिले थे, तभी उनकी उम्र करीब 75-80 के बीच में थी। उन्होंने भी 28 से भी वर्षी तप किया है और 16 भक्ता से भी वर्षी तप किया है। और दूसरे तो और कितने कितने बड़े तप लगातार 108 उपवास भी किए हैं। हाँ, चणी तप, सिद्धि तप, धर्म चक्र तप वगैरह जो बड़े बड़े तप हैं ना, वो सारे तप वो सरस्वती बहन ने भी किए हैं।
ऐसी एक दूसरी सरस्वती बहन भी हो गए हैं। अपने कहा वो राधनपुर के थे, जिन्होंने एक उपवास से तो करीब 20 वर्ष तप किया, फिर छठ से भी कुछ वर्ष तप किए, 18 से वर्ष तप किया, 4 उपवास से वर्ष तप किया, 5 उपवास के पाने 5 उपवास से वर्ष तप, 6 उपवास के पाने 6 उपवास से वर्ष तप किया, 7 उपवास के पाने 7 उपवास से वर्ष तप किया, और 28 वर्ष तक चालू था और उनका आयुष्य समाप्त हुआ। ऐसे ऐसे विशिष्ट आराधक रत्न ये जिन शासन के अंदर अनेक अनेक भूतकाल में तो हो गए हैं, लेकिन वर्तमान काल में जब हमारा शरीर का संज्ञान बहुत कमजोर है, चलते चलते थोड़ी सी ठोकर लगती है, तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है, तुरंत स्लिप डिस्क हो जाता है, ऐसे कमजोर शरीर होते हुए भी ऐसी महान भीष्म अनुमोदनीय तपस्या करने वाले अनेक तपस्वी रत्न विद्यमान हैं। दूर की बात जाने दो, आपके भाईंदर में देखो ये नवीन भाई कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं? मोती ना, अजंता अपार्टमेंट और मोती नगर भाईंदर वेस्ट, कितने में मालिक रहते हैं? सेकंड, थर्ड फ्लोर। अभी दर्शन करेंगे। ऐसे तपस्वी तो जंगम तीर्थ कहे जा सकते हैं, चलते फिरते तीर्थ, जिनका दर्शन करने से भी और इनकी अनुमोदना करने से हमारे कितने पाप धुल जाए। हम तो ऐसी तपस्या नहीं कर सकेंगे भाई, लेकिन केवल हृदय पूर्वक अहोभाव से इनकी अनुमोदना करने से भी हमारे कितने जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते। इतना ही नहीं, और धीरे धीरे हमारे में भी आज नहीं तो कल कभी न कभी ऐसी आराधना ऐसी तपस्या करने की शक्ति भी आती है। यहाँ ये ऐसी तपस्या कर सके, इनके पीछे इनके भूतकाल के कितने भावों की तपस्या की लिंक चालू होगी। इन्होंने खुद ने तपस्या की होगी, इतना ही नहीं अन्य तपस्वियों की भैया सेवा भक्ति की होगी, तपस्वियों की अनुमोदना की होगी, तपस्वियों के बहुमान प्रभावन आदि के द्वारा किया होगा, तभी आज इनमें ऐसी शक्ति आई है। गृहस्थ जीवन में होते हुए भी इतनी महान भीष्म तपस्या। अभी तो और बहुत लंबा आगे है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने एक बार 123 उपवास लगातार, 4 महीने के उपवास 123 उपवास लगातार किए हैं। दूसरी बार फिर 108 उपवास भी किए हैं। फिर 85 उपवास भी एक बार किए हैं। 68 68 उपवास भी किए हुए हैं। 51 उपवास भी किए हुए हैं। 36 उपवास भी किए हुए हैं। 30 उपवास मासिक श्रमण 5 बार किया हुआ है। 21 उपवास भी किया हुआ है। 16 उपवास 24 पानी तक भी नहीं पीने का। आपने कभी 24 उपवास एकाध भी किया है किसी ने? तो पता चलेगा कितना कठिन होता है। हमको एक बार अनुभव हुआ है, बहुत साल पहले की बात है। 24 अठम की थी तेला, उसी चातुर्मास में कच्छ देवपुर में नवाई मैंने 9 उपवास मौन पूर्व किए, एकदम आसानी से हो गए। ऐसा होता था कि पालना नहीं करो और आगे बढ़े, लेकिन संत के बहुत आग्रह से 9 उपवास के बाद पालन हुआ, लेकिन वो 9 उपवास एकदम आसानी से हो गए। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर 13 अठम किया, 24 पानी भी नहीं पीने का। लेकिन वो तो कहते हैं धोला जी से तारा देखता है, बहुत वो कठिन हुए। 24 अठम बिना पानी का, पानी भी एक प्रकार का आहार है ना। तो इन्होंने 16 उपवास 24 किए हुए हैं, वो भी मौन के साथ। वास्तव में जो भी ऐसी बड़ी तपस्या हो ना, जितना संभव हो उतना उसमें मौन रखना चाहिए। मौन रखने के बहुत बहुत फायदे हैं। शारीरिक शक्ति तो स्ट्रेंथ तो बनी रहती है, लेकिन चित्त की एकाग्रता भी होती है। तप के साथ जप भी करना चाहिए, और जप में एकाग्रता करवाने के लिए मौन अति अति उपयोगी और सहायक होता है। करते हैं मौन एकादशी आती है, तब भी पूरा दिन मौन रखने वाले कितने हैं? जरा आंगुली ऊंची कीजिए। तपस्या करनी होगी हम एकादशी की शायद, लेकिन उसमें पूरा 24 घंटे का मौन रखते थे। चलो एक तो है इधर, क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? लक्ष्मीबेन सालिया। हाँ, तो शायद अभी सुनते नहीं है, तो ऐसे उंगली ऊंची कर दी होगी। रखते हैं मौन, रखते हैं। आपने भी किया है? कितना टाइम किया है मौन? 2 बार किया है, एक 24 घंटे का लगाते, फिर 2 दिन का 3 दिन का किया है। अभी पर्युषण में 8 दिन भी मौन करना चाहिए। अब ये हमारे यहाँ ऐसे श्रावक हो गए हैं अभी नजदीक के भूतकाल के अंदर, जो साल में 6 अट्ठाइयाँ जो आती हैं, पर्युषण की 28, 2 अम्बिल की होली की 9 दिन,
और चौमासी 3 अट्ठाइयाँ जो होती हैं, ऐसे 6 अट्ठाइयों में टोटली मौन। इतना ही नहीं, मौन के साथ एकांत में रहना। अपने घर के एक अलग कमरे में रहते हैं और निरंतर अपने आत्मा स्मरण, आत्मचिंतन, आत्म ध्यान में निमग्न रहते थे। अभी अभी मेरे ख्याल से कितना साल हुआ, 5 साल अभी उसको पूरे अभी होंगे उनके काल धर्म के। बोलो मालूम है श्रावक का नाम किसी को? कच्छ मेराऊ के थे। बोलो अभी बोलो नाम। हाँ नहीं, धीरज भाई नहीं। दो बांधव बेड़ी दोनों भाई बड़े अच्छे आत्म साधक थे, आदर्श श्रावक थे। देवजी भाई और छोटे भाई नानजी भाई। तो ये नानजी भाई 6 अट्ठाइयाँ मौन करते थे। मौन में भी अपन तो मौन भी कभी करते हैं तो कितना हुंकारा हुंकारा इशारा कितना जलता है, बार चलता है, कुछ नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति का भी संभव इतना मौन, आंख खोलकर भी किसी के सामने देखना नहीं, आंख से आंख मिलाना नहीं, मन आंख से भीतर की आंख, ज्ञान चक्षु या दिव्य दृष्टि आपने बताई ना अभी, उसको खोलने के लिए अंतर्मुख होकर के आत्म ध्यान करते हैं। ऐसे श्रावक रत्न भी हमारे जिन शासन में और कच्ची समाज में अभी अभी नजदीक कई भूतकाल में हो गए हैं। तो ये जो नवीन भाई श्रावक हैं अभी विद्यमान है, वो तो आपके नगर में है। 16 उपवास 24 उपवास के साथ और टोटल 16 दिन मौन के साथ उन्होंने 16 व्रता किया। ये केवल आपको सुनना नहीं है, सुनते सुनते ऐसी भावना करनी है, ऐसे मनोरथ करने हैं कि चलो हम भी कभी न कभी ऐसा करें। 16 उपवास शायद सभी नहीं कर पाएंगे, मौन का अभ्यास तो कर सकते हैं ना। भले लगातार 16 दिन या 8 दिन न करें, कम से कम एकाध दिन के लिए करो, कुछ घंटों के लिए करो, प्रतिदिन 2 घंटे 1-2 घंटे के लिए भी मौन का अभ्यास करो। धीरे धीरे मौन बढ़ जाते जाओ। ऐसे भी साधक वर्तमान काल में जिन शासन में हैं, जो लगातार 12 साल से मौन वर्षितव के साथ, बोलो किसी को मालूम है? वर्षितव के साथ लगातार 12 साल या 14 साल मेरे ख्याल से मौन रहे, आत्म साधना एकांत में करते रहे, अभी भी विद्यमान है। और वो महासती स्थानकवासी हैं कच्छ के, अभी डहाणू रोड में है। किसी को मालूम है? बोलो अभी नहीं मालूम है? इनका नाम क्या है? बोलो। वसुधाबाई महासती जी। क्या नाम है? वसुधाबाई महासती जी 12 या 14 इतने वर्षित मौन के साथ किए। उसमें भी ज़्यादा समय एकांत में रह करके आंखों बंद करके दृष्टि मौन करते हुए वह आत्म साधना और बहुत अच्छी आत्मदशा भीतर की उन्होंने प्राप्त की है। सुना जाता है कि वो श्रीमंदर स्वामी के साथ भी उनका ध्यान के माध्यम से संपर्क हो सकता है, इतनी अच्छी उनकी आत्मदशा हो चुकी है। अभी बड़ी अवस्था विरुद्ध है। गुरु शिष्य 2 ही थे। गुरुनी जी का इतना ऋणानुबंध था शिष्या के साथ। वो गुरुनी भी इतने उदार थे कि तू तपस्या और साधना कर, मैं तो इतनी नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी उनके सेवा करते थे, उनको पानी पीने के लिए पानी का प्याला भी वो गुरुनी जो थे वो भर करके उनको प्रेम से देते थे। ऐसा अच्छा ऋणानुबंध गुरुनी शिष्या के बीच में भी था। गुरुनी का भी कालजन्म हो गया है, तो अभी खुद अकेले है, वृद्धावस्था है। कोई वहाँ के श्रावक शाविका उनकी सेवा में होंगे। तो ऐसे ऐसे विशिष्ट कोटि के आत्म साधक वर्तमान काल में भी हैं। उनमें से हमें भी कुछ प्रेरणा लेनी है और हार्दिक अनुमोदना करनी है। अनुमोदना भी सम्यक कब होती है? देखो, करावण फिर अनुमोदन की बात है ना। यथाशक्ति हम भी आराधना साधना वगैरह करें, फिर प्रेरणा करके किसी को आराधना में जोड़े मन करावाना। और फिर आता है नंबर अनुमोदना का। कोई करोड़पति अरबोपति हो और अवसर पर 1000 रुपये 5000 लिखाना हो तो भी नहीं, हम तो अनुमोदना करेंगे, तो वो अनुमोदना सम्यक कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। यथाशक्ति अच्छे कार्य करे, दूसरों की प्रेरणा करके करवाए, और फिर अनुमोदना तो जगत के जीव मात्र के भी गुणों की कर सकते हैं। कम से कम अपने परिचय में जितने जितने ऐसे आराधक रत्न आते हैं, उनका एक लिस्ट बनाना चाहिए और उनको अक्सर याद करते हुए उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। ऐसी एक किताब भी प्रकाशित हुई है, आपको मालूम है किताब का नाम? जिसमें ऐसे ऐसे कई आराधक रत्नों के दृष्टांत दिए हुए हैं। उसके 4 विभाग हैं। पहले विभाग में जन्म से जैन नहीं होते हुए भी वह जैन धर्म का विशिष्ट पालन करते हैं,
ऐसे करीब 75 के आसपास दृष्टांत है। दूसरे विभाग में श्रावक श्राविकाओं में ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आराधक रत्न है, हाँ, उनके दृष्टांत है करीब करीब 150 के आसपास। तीसरे विभाग में साधु साधी किसी भी संप्रदाय के अपने जैन साधु साधी उनकी विशिष्ट अनुमोदना है, दृष्टांत है। चौथे विभाग में थोड़े प्राचीन महापुरुषों के दृष्टांत है। किताब का नाम अभी ख्याल में नहीं आया, किसी को नहीं पढ़ा किसी ने। अभी जो नाम श्लोक बोला ना मैं शुरुआत में, उसमें जो लास्ट क्या शब्द थे, बहुरत्ना वसुंधरा। किताब का नाम भी बहुरत्ना वसुंधरा ही हमने रखा है। गुजराती में भी और हिंदी में भी इसकी हिंदी आवृत्ति भी प्रकाशित हो चुकी है। अभी तो करीब करीब खराब भी हो चुकी है। ऐसे कई आराधक रत्नों के दृष्टांत उसमें दिए गए हैं। हाँ, ऐसे ऐसे दृष्टांत पढ़ने से सुनने से क्या लाभ होता है? एक तो अनुमोदना का लाभ मिलता है, दूसरा उनमें से हमको प्रेरणा भी मिलती है। तीसरा लाभ क्या, मानो हमारे जीवन में कुछ थोड़ी बहुत आराधना है, उसका कभी कभी थोड़ा अहंकार आ जाता है ना, तो ऐसे दृष्टांत पढ़ने से सुनने से हमारा अहंकार पिघल जाता है। कि हमको लगता है कि हमारा जैसा कोई किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन दुनिया में तो शेर के माथे सवा से जैसी बात है। जिन शासन में तो एक से बढ़कर एक ऐसे आराधक रत्न वर्तमान में भी कई विद्यमान है। प्राचीन दृष्टांतों में तो हम सुनते हैं भाई कि मेहतारज महामुनि और वगैरह खंडक महामुनि वगैरह क्या करते थे, महीने के उपवास, मासिक श्रमण के पारण, फिर मासिक श्रमण, फिर एक पारण, फिर मासिक श्रमण करते थे। हाँ, तो उनके मिनी आवृत्ति स्वरूप वर्तमान काल में भी ऐसे आराधक ज्ञानी तपस्वी रत्न है। 28 वर्षी तप, 16 उपवर्ष वर्षी तप, 11 उपवर्ष पर वर्षी तप किया, और कितने कितने श्रेणी तप किया, मोक्ष कंडक तप, शत्रुंजय तप, धर्म चक्र तप, श्रेणी तप 111 जितना करीब होता है। उसमें मेरे ख्याल से कितने 81 जितने उपवास आते हैं। धर्म चक्र भी करीब 82 दिन का आता है, उसमें भी एकांत उपवास और पहले सूर्य अठम होती है, तेला होता है। प्रदेशी राजा का तप, 20 स्थानक तप जो किया है ना, इसमें 20 उपवास आते हैं। 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में एक होली करने की होती है। इन्होंने हर एक महीने में एक होली माने 20 उपवास, ऐसे 20 होलियाँ 20 स्थानक की 20 महीने में 20 स्थानक तब भी पूरा कर लिया। फिर लगातार 500 अमील भी एक बार किए, एकांत नहीं, लगातार 500 अमील भी किए, फिर लगातार 1000 अमील भी किए, लगातार बिना मारने से किए। आप में से है कोई ऐसे एकांत अमील करके 500 अमील की? ऐसे भी कोई नहीं है। तो अनुमोदना करना है। कितना किया है? 500 अमील किया है एकांतरे। क्या नाम आपका? धनवंती बहन नागड़ा, गांव कच्छ नरेड़ी के। खूब अनुमोदना 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 अनुमोदना। इन्होंने उपधान, तीनों उपधान तब किए हैं, वो भी मूल विधि से। आजकल उपदान होते हैं, उसमें एक दिन उपवास होता है, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है? निवियाता होता है, एकाष्ट जैसा। उसमें तो कई कई आइटमें होती हैं। इन्होंने उपवास के पालने आंबिल से पूरा उपदान, तीनों उपदान मूल विधि से। उपवास के पालने निवियाता नहीं, आंबिल करने का, एकांतरा उपवास, आंबिल उपवास, आंबिल, इस प्रकार से मूल विधि से तीनों उपधान तब भी कर लिए हैं। इतना नहीं, नवपुर जी की भी 45 ओलियाँ, 45 तो इसमें लिखी है, अभी तो बहुत साल पहले छपा हुआ है, अभी तो इससे और कितनी ओली हो चुकी होंगी। वर्धमान आंबिल तब की इसमें 18 ओली लिखी है। अभी कल ही हमको मिले, हाँ, उनसे बातचीत हुई है। आपका भी दर्शन करना हो तो हमारे जो वीरेंद्र भाई हैं, उनके पास उनकी तस्वीर भी है। हाँ, 62वीं ओली अभी छपा है, तब 18वीं ओली इसमें है। हाँ, लेकिन अभी सिर्फ 62 ओली हो चुकी है। उनकी भावना है कि 100 ओली मैं पूरी करूं। हाँ, एक तो भाग्यादि ने, लेकिन उनके मनोरथ तो है कि मैं आगे बढ़ते बढ़ते 100 ओली तक भी पहुंच जाऊं। आज तो उनकी उम्र मेरे ख्याल से कितनी है? 70 से कुछ ज़्यादा, 75 साल के आसपास उनकी उम्र है। लेकिन 36 साल की उम्र में ही वो रिटायर हो गए। कितनी सोचो, हाँ, एट एज ऑफ 36 ईयर्स ओनली, 36 साल की भर युवा अवस्था में निवृत्त हो गए धंधे से और आराधना में लग गए हैं। 36 का उल्टा करो, कितना होता है? 63 होता है।
63 से भी ज़्यादा साल आप में से कितने के हो चुके हैं फिर भी रिटायर हुए हैं अभी? हैं? जब तक सांस कुछ टायर ऐसे होते हैं ना, जब तक रिटायर फटते नहीं है तब चलते रहो, उसका मालिक उसका यूज करता ही रहता है, करता रहता है, फिर अचानक ब्लास्ट होता है, धड़ाका, रास्ते के बीच में फट जाता है, पंक्चर हो जाता है, गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है, कहीं गिर भी जाती है। तो ऐसा समय आए, हाँ, बेड रेस्ट लेना पड़े, इंद्रियां पूरी काम करने बंद हो जाए, डॉक्टर को कहना पड़ेगी आपको भी बेड रेस्ट करना है, तब तो खींचे चले जाते हैं। संतान उम्र लायक हो चुके हैं अगर, तो उनको जिम्मेवारी सौंप के आप 51 में प्रवेश करो। 51, 52 पहले के काल में, हाँ, वन में क्या करते, वान प्रस्थाश्रम, क्या मतलब उसका, वन में प्रस्थान कर चले जाते थे, वहाँ छोटा सा आश्रम या झोंपड़ी जैसा कुछ कुटी जैसा बांध करके उसी में रह करके यथाशक्ति तपस्या के साथ प्रभु का नाम स्मरण भजन कीर्तन वगैरह करके आत्म साधना करते। बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऐसा करते थे। आपका मुहूर्त कब है, निकालना है मुहूर्त तो बोलना, आपको निकाल देंगे। चारित्र संन्यास आश्रम से चारित्र भी लेते थे, वो लेना तो और अच्छी बात है। देखो आज ही भाईंदर वेस्ट में एक दीक्षार्थी बहन है, क्या नाम, रुचि तो उसका नाम है, और वहाँ पर 18 वर्धमान शक्र स्तव के साथ अभिषेक होने वाला है। दोपहर को 12:30 से लेकर के करीब 4 बजे तक चलेगा संगीत के साथ। हमको भी उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक विनती की है, तो हम भी दोपहर को वहाँ जाने वाले हैं। आपको भी अनुकूलता हो तो जरूर ऐसे भक्ति के कार्यक्रमों में भी शामिल होना। हाँ, तो इतनी सारी तपस्या और आराधनाएं की है, और इतना ही नहीं, अभी भी हाँ पिछले 20 सालों में लिखे तो 18 वर्ष तो उपवास उनकी गए हैं, जब ये छपी हुई है बहुत साल पहले। हाँ, उसमें अंतिम 20 साल में करीब 18 साल तो उनके उपवास में ही बीते हुए हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष में उनके पारने कितने हुए, केवल मालूम है, महावीर स्वामी भगवान के 12.5 वर्ष की समस्त अवस्था, उसमें कभी दो उपवास से नीचे तक किया ही नहीं है, सब उपवास 24 बिना पानी के। और उसमें भी पारने कितने, 349, माने 1 साल भी पूरा नहीं। बाकी सभी 24 छठ, अठम, पासक क्षमा, मासक क्षमा, 1.5 महीने का उपवास, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का लगातार उपवास, ऐसी तपस्या जैसे कि उनकी मिनी आवृत्ति थोड़ी सी कह सकें तो ये 20 साल में केवल 18 साल तो उनके उपवास में ही बीते हैं। और फिर भी देखो कैसे उनके जीव दया का पालन अगले जन्मों में किया होगा। कल हमको मिले, इतनी उम्र अभी 75 साल की है, एकदम हेल्दी दिखते हैं। नहीं तो इतनी सारी तपस्या की हो तो शरीर कैसा हो जाना चाहिए था, लगता है अपने को दुबला पतला हो जाना चाहिए, लेकिन एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं अभी भी। और भावना कर रहे हैं कि मैं कितना करूँ, 100 ओली पूरी करूँ। इतना ही नहीं, और भी आगे लिस्ट है। हाँ, क्या क्या है इसके आगे लिस्ट में। दोनों टाइम वो प्रतिक्रमण करते हैं। आप में से कितने दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, अभी है कोई? शाबाश, धन्यवाद। चलो, इधर भी एक उंगली ऊंची, इधर भी एक उंगली ऊंची हुई है, इधर 2 है, और श्रावक में 2 है, शालिका में 1। शालिका तो धर्म में आगे होते हैं हमेशा। तो दोनों टाइम प्रतिक्रमण। चलो, शाम को प्रतिक्रमण एक टाइम, दोनों शाम को अथवा सुबह एक टाइम प्रतिक्रमण वाले कितने हैं? 9 हरिहंता ने महाराज शायद पर्यूषण आएंगे, तब हम 8 दिन 17 आयोजन, वो भी आयोजन होता है तो 17 करते हैं प्रतिक्रमण। है प्रतिक्रमण, घर की सफाई साल में बस 8 दिन करते हैं रोज, वो भी कितनी बार? 2 बार, कभी 3 बार भी करते हैं। जहाँ भी धूली आएगी तो तुरंत साफ कर देंगे। तो आत्मा, हमारा जो आत्मा का घर है उसकी सफाई पर्यूषण में केवल हर रोज 2 टाइम करना चाहिए। वास्तव में प्रतिक्रमण माने पाप से पीछे हटने की प्रक्रिया है। तो ये 2 टाइम प्रतिक्रमण भी करते हैं। और केश का लुंचन भी साधु जीवन की नाइट प्रैक्टिस के स्वरूप केश लोग आज में से कितने करवाया है? हलापुर में हमारा चतुर्मास था, आपने तब करवाया था ना, हमारे चंद्रकांत भाई और नरेश भाई भी। अभी तो उनके लिए एकदम आसान हो गई, देखो। भाव आलोचना भी उन्होंने ले ली है नरेश भाई ने। दहीसर में चतुर्मास था, 30 रोज जिन्होंने रोज करवाया, जिसमें बिल्डिंग के वॉचमैन को इतना भाव हो गया, उसने भी रोज करवाया। 3 सगे भाइयों ने रोज कराई।
पिता पुत्र की 3-4 जोड़ियों ने लॉन्च करवाया। 8 साल के बच्चे ने भी जिद रखी कि पापा आपने करवाया तो मुझे भी लॉन्च करवाना है। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, बेटा तू छोटा है, बड़ा हो जाए तो करना। नहीं, मुझे भी करना। रोज रोज रोए उसके लिए, पूर्व जन्म में संस्कार होंगे। आखिर उनको इजाजत मिले। हाँ, करीब करीब आधा तो रोज करवाया, बाकी का भले हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, लेकिन 8 साल का बच्चा जिद करके लॉन्च करवाता है इतना, वो भी कितनी बड़ी बात है। ये सब जिन शासन की बदौलत है। हाँ, कि ऐसे ऐसे आराधक रत्नों के वर्तमान काल के दृष्टांत भी हमको सुनने और देखने तक भी मिल सकते हैं। जितना अहोभाव धारण करेंगे हृदय, आहा मैं कितना भाग्यशाली, ऐसा महान तारक जिन शासन मुझे मिला है। हमारे साहिब जी ने जो स्तुति बनाई है, क्या है? धन्य छो पुण्यशाली छो, मुझ मनुष्य जन्म सफल करो, रण लोक नाथ मनाने सद्भाग्य मुझ धन्य दिन पावन प्रहर कड़ी पद पवित्र आज रण जगत ना उद्धार कर जिन अच्छी बात है, इतने को आते हैं श्रुति बोलते हैं, लेकिन एक भाव विभोर होकर के बोलना चाहिए। उस जो शब्द है उसका जो अर्थ है उसके अनुसार हृदय में भाव हो भाव धारण करते हुए करें। स्तुति बोलेंगे ना, तो स्तुति बोलने में भी कितने सारे हमारे कर्म साफ हो जाते हैं और विशिष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन भी हो सकता है। जिन शासन ऐसा है जिसमें ऐसी कठिन उपाय तपस्या आदि के त्याग के भी बताए हैं, संयम के बताए हैं, और दूसरी ओर इतने आसान से आसान कोई बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न बोल सके कि ये उपाय भी मुझसे नहीं होगा, ये आराधना मुझसे नहीं होगी। बोलिए ये सुकृत अनुमोदना की आराधना, इसमें कोई पैसे लगते हैं? कुछ इसका नकरा बोली कुछ है अनुमोदना करने के लिए? कुछ भी नहीं। अच्छा, काया को कष्ट होता, उपवास हम सब नहीं कर पाएंगे, अनुमोदना। अच्छा, इसमें कोई बलवान व्यक्ति कर सकता है, निर्बल नहीं, ऐसा कोई है? हाँ, अरे तंदुरुस्त हो या बीमार हो, बेड रेस्ट, पैरालिसिस लागू हो गया है, कैंसर वगैरह हो गए हैं, बेड रेस्ट है, फिर भी पथारी में लेटे लेटे भी अनुमोदना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन वो भी कई बार नहीं होती है। रोते रहते हैं महाराज क्या करें, अभी चला नहीं जाता है। अरे भाई, अभी नहीं चला जाता है, इतने साथ जिंदगी में इस पांव के द्वारा जो भी आपने तीर्थों की यात्राएं की हो, देवगुरु के दर्शन वंदन वगैरह करने में इस काया ने जो साथ लिया उसकी अनुमोदना करो। रोने से तो आर्त ध्यान होगा, कर्म बंधन होंगे। तो वृद्धावस्था में हाथ पांव थक जाते हैं तो आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। कुदरत कहती है भाई बहुत दौड़े बाहर बहुत देखा, अभी भीतर देखो। किसी की आंखें भी चली गई, ऐसे दर्शन है, बड़ी उम्र में आंखें चली गई तो भी रोए नहीं। वो क्या सोचते हैं? सिद्धेश्वरी बाबा जी महाराज हो गए 103 साल जो जिए, 33 साल लगातार वर्षितप किए, पिछले 33 साल 70 साल की उम्र के बाद जिन्होंने वर्षितप का प्रारंभ किया और 103 साल की उम्र तक लगातार वर्षितप चालू ही जिन्होंने रखे, पिछले करीब 10-12 साल तक उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। किसी ने कहा आपको अभी तो बहुत तकलीफ होती होगी, नहीं बिना आंख के कैसे सब जीवन जिया जा सकता? अरे भाई, इसमें क्या तकलीफ? कुदरत कहती है कि बाहर बहुत देखा, क्या मिला? सब क्षणभंगुर। अभी भीतर देखो, अपनी आत्मा को देखो, इसके लिए मुझे अच्छा मौका मिल गया अभी। देखो, पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं इसको। किसी भी परिस्थिति में निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक सोच के द्वारा हमेशा आनंदित रहना चाहिए। आनंद हमारी आत्मा का स्वभाव गुणधर्म है, इसलिए हमारे महात्मा का नाम रखा है आनंद रत्न सागर जी महाराज। आपके इधर पधारे हैं, बहुत आनंद में हैं। हाँ, कभी सत्संग करना, बैठना, जब देखो आनंद है आनंद है आनंद है, और सचमुच में आनंद में ही हमेशा रहते हैं। अभी उनकी होली चल रही है 26 + 27, 2 होलियाँ लगातार चालू है, विहार भी है तो भी, फिर भी देखो आनंद में स्वस्थ हैं। और घनी वर्ष बैठे हैं, इनकी भी 65वीं होली 65 65वीं होली अभी भी चालू है। तो क्या करना चाहिए? हमेशा आनंद में रहना चाहिए। आनंद हमारे आत्मा का स्वभाव है, सत्यचित और आनंद घन हमारे आत्मा का स्वभाव है। तो और
पिछले 40 सालों से सचित पानी के वनस्पति का त्याग है इनका। पिछले 25 सालों से पाँव में चप्पल तक भी नहीं पहनते हैं, कुछ भी पकड़ खा पकड़ नहीं पहनते हैं। मुंबई जैसी सिटी में रहना और खुले पाँव चलना साधु साधु के सिवाय आपके लिए जरा ऑड लगता है ना, ऑड लगता है कि वे पाँव में चप्पल नहीं है। चप्पल बिना कौन घूमता है? जो ऐसा होता है गुंडा जैसा लोग तो कभी कभी वो ऐसे घूमते होंगे शायद। हाँ, तो फिर भी बिना हिचकिचाए 25 साल से पीछे चप्पल तक का भी उनका त्याग है। ऐसे इतना ही नहीं, 3 बार सिद्धि तप इन्होंने किया है, जो 43 दिन का होता है ना, जिसमें 36 उपवास आते हैं। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास लेकर 8 उपवास तक की 8 श्रेणियाँ होती हैं। उसमें भी एक सिद्धि तप तो उपवास के पाने आमिल, चाहे 3, 4, 5, 6, 7 उपवास भी हो, उसके पाने में व्याख्या नहीं करने का, आमिल करने का, इस प्रकार से सिद्धि तप भी इन्होंने किया है। उनके गुरु महाराज कौन है? मैंने कल पूछा, सारी डिटेल ली मैंने कल। हाँ, तो कहा कि रत्न सुंदर सूर्य आचार्य भगवान, सरस्वती लब्ध प्रसाद रत्न सुंदर सूर्य आचार्य भगवान, जिनकी अभी 400वीं किताब का विमोचन हुआ बड़े अहमदाबाद में, बड़े धूमधाम महोत्सव पूर्वक 400वीं स्पर्श नाम की किताब का विमोचन हुआ। करीब 14-15 भाषाओं में तो जिनका अनुवाद हो चुका है। तो ये इनके उपकारी, विशिष्ट उपकारी गुरु भगवंत हैं। इनकी धर्म पत्नी जिनका नाम है भावना बहन, उन्होंने भी 1 वर्ष तक किया, 1 मासिक श्रमण किया है। और पिछले 25 सालों से हर परिश्रम में 28 तप करती है इनकी धर्म पत्नी श्राविका भावना बहन भी। बड़े भाग्य होते हैं तब पति पत्नी दोनों की रुचि एक समान होती है। अधिकांश तो क्या होता है, एक जाता है पूर्व में, दूसरा जाता है पश्चिम में। डांडिया रास नवरात्रि के 9 दिन तो होते हैं, लेकिन कई ऐसे घर होते हैं जिसमें हर प्रतिदिन डांडिया रास चलते रहते हैं, पति पत्नी वगैरह के बीच में, कहीं सास बहू के बीच में, कहीं देवरानी जेठानी के बीच में। हाँ, लेकिन यहाँ धर्म पत्नी की भी तपस्या की अच्छी भावना है। तो ऐसे दृष्टांतों में से प्रेरणा लेनी है और आज से संकल्प करो, जब तक नवीन भाई का ऐसे महान तपस्वी आराधक का दर्शन नहीं करें तब तक एकाध चीज का त्याग। आपको एड्रेस भी मिल गया है। हाँ, फिर से रिपीट करना है। कौन सी बिल्डिंग? अजंता बिल्डिंग, 3रे माले, मोती नगर, बाइंडर वेस्ट। नाम है नवीन भाई शाह। बरोबर है? करेंगे, संकल्प करेंगे ऐसे। कई लोग संख्या से जाते हैं, हर महीने 1 बार, कोई पालिताना जाते हैं। ये तो आपके गांव घर बैठे गंगा जैसी बात है। जब तक ऐसे तपस्वी आराधक अपने नगर में होते हुए भी हम क्या आपको धन्यवाद दो? आप आराधना में इतने व्यस्त है अपनी आराधना में कि अपने नगर में ऐसे तपस्वी आराधक रत्न है, अपने को पता तक भी नहीं है। इतने स्वाध्याय में, इतने जाप में आप तल्लीन होंगे मेरे ख्याल से, नहीं? इसलिए धन्यवाद आपको दो। क्या करूं? बोलो। गुण दृष्टि रखनी चाहिए। साहब नपटाड़ो ना है, असली दामजीभाई भी तपस्वी है। हाँ, कौन है? दामजीभाई जा भी एनी जी थी। कौन है दामजीभाई? कौन है? हीरा। हाँ हाँ, दामजीभाई जी भी तपस्या एनी जी तेरे सुधी है। આજે કોઈ કાસરા કહીએ તા ઠામ જોઈએ કહીએ મેળ ઉનાળો વેન ગમે ઠામ જોઈએ। बहुत अच्छा अनुमोदना। अच्छा चलो, भाईंदर वेस्ट में से तो हमको ऐसे और भी एक दृष्टांत मिला है। अभी टाइम अपना हो चुका है करीब करीब। हाँ, फिर भी जरा बोल लूँ। चलो, आज भाईंदर की बात है, बैठे हैं तो। एक जैनेतर आत्मा पिछले 4-5 दिनों से हमको ऐसे एक दृष्टांत मिल जाते हैं। तो जन्म से जैन नहीं होते हुए भी विशिष्ट रूप से जैन धर्म का पालन करते हैं। नारासोपारा वेस्ट में भी मिला, नारासोपारा ईस्ट में भी मिला और वसई में भी मिला। और कल हमको बाइंडर वेस्ट में भी एक ऐसे विशिष्ट आत्मा मिल गए। तो जो जन्म से पटेल हैं, जैन नहीं है, लेकिन बचपन से ही अगले जन्म में कोई ऐसी जैन धर्म की आराधना और अनुमोदना की होगी, जिसकी वजह से आज भले किसी वजह से पटेल कुल में जन्म हुआ है, लेकिन बचपन से कांदा बटाटा, लहसुन प्याज, पोटैटो वगैरह जमीन कन नहीं खाते हैं। उसके घर वाले भले खाते भी है, लेकिन ये चुस्त रूप से जमीन कन का त्याग वर्षित भी किया है। इतना ही नहीं, 9 जी की 9 ओलियां किस प्रकार से की है? एक एक द्रव्य से, एक धान्य नहीं, एक ही आइटम। 9 पद में जिस दिन जो पद हो उसका जो कलर आता है शास्त्र में, अरियंती आराधना सफेद पद से सिद्ध की, लाल, आचार्य पीला, उपाध्याय का लीला, साधु का श्याम वर्ण, और पिछले 4 पर सम्यक दर्शन दान साहित्य की सफेद वर्ण से। तो उस कलर का जो धान्य होता है,
केवल उसी धान्य मैंने उसी की एक आइटम, उसमें भी 4 अंगुल तक पानी तैरता रहे, इतना पानी डाल लेने का और फिर उसे आमिल करने का, वो भी बिना नमक का। आजकल आमिल तो कुंभार ढोकड़ा मुंबई में प्रसिद्ध है, करीब 80, 90, 100 जितनी आइटमें कभी कभी उसमें बनती हैं आमिल के अंदर। यहाँ तो केवल एक ही आइटम से आमिल करना, जैसे चावल है तो केवल चावल बिना नमक का, वो भी चावल, और उसमें भी 4 अंगुल जितना पानी ऊपर तैरता है, इतना पानी डाल करके बस वो पी जाते हैं, आमिल कर लेते हैं। दूसरे दिन समझो सिद्ध पद है तो केवल गेहूँ गेहूँ और उसके अंदर भी ऊपर पानी डाल लेने का, गेहूँ की घुघरी बोलते हैं, घुघरी, बस केवल, और उसको उबाल करके उसमें पानी इतना डाल करके उसी से आमिल करें। तीसरे दिन केवल चने की दाल और उसके ऊपर पानी, चौथे दिन मूंग, और 5वें दिन उड़द के बाकुड़े, चंदन बाला भगवान भाभी को बनाए थे ना, तो उड़द के बाकुड़े और उसमें के ऊपर पानी डाल देने का। इस प्रकार से, और फिर लास्ट 4 दिन तो केवल चावल और पानी। आप में से किसी ने एकाल आमिल ऐसा किया है? भात पानी, अब बोले भात पानी नो लाभ दे जो जी, पहले के काल में भात पानी का ही अधिकांश चलन चलता था। तो चावल का पानी भी ले सकते हैं अथवा सादा पानी भी ले सकते हैं उबाला हुआ। इस प्रकार से एकाल आमिल भी नहीं किया है, इसमें बहुत फायदे होते हैं। हमारा चतुर्मास समेत शिखर में था गुरुदेव की निश्रा में, निश्रा से एक श्रावक आए थे, मेरा नाम था सुखमल जी। वो उन्होंने तो खुद भी किए थे, कितने लोगों को प्रयोग भी किया था। केवल भात और पानी के आमिल से कितने बीमारियां, रोग भी मिटाए थे बिना दवाई से। और उन्होंने 3 प्रयोग बताए। एक तो आमिल करने का ऐसा बिना नमक का चावल और उसका पानी, वो चावल को भी ज़्यादा उबालने का नहीं, आधा कच्चा पक्का रख करके उसको निगलते जाना, उसके ऊपर जितना पी सको ज़्यादा उतना पानी पीना, सारी गर्मी शरीर में होगा, पित्त होगा, सब निकल जाएगा और आपका शरीर निरोगी स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा प्रयोग है कि भोजन से पहले, सुबह नाश्ते से पहले भी, भोजन से पहले दोपहर को, उससे पहले भात खाओ चावल, और वो उसके ऊपर थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा पी लो, बीच में थोड़ा 15, 20, 25 मिनट रेस्ट करो, फिर दूसरा जो खाना वो आप खा सकते हैं। दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग है रोज सुबह खाली पेट से ही कच्चे चावल, बिना उबाले बिना पकाए कच्चे चावल, इतना 1 तोला 10 ग्राम इतना करीब ले लेने का, निगल जाने का, उसके ऊपर 1-2 लोटा जितना पी सको ज़्यादा उतना पानी पी जाने का, और उसके फिर 15, 20, 25 मिनट के बाद आपको दूसरा नाश्ता करना वो कर सकते हैं। और साथ में तो ऐसे प्रयोग अच्छे लगते थे, दस्ती सुकड़ी शिवपुरी यात्रा तभी से साहब ने शुरू कर दिया। पिछले 8 साल से वर्षी तप कर रहे थे, तो वर्षी तप में भी जब पालना होता है ना, तो सुबह में मूंग का पानी, रामबाग, वो कुछ नहीं, पहले कच्चे चावल हक जाते थे, ऐसे ले लेते थे, उसके ऊपर ज़्यादा पानी पी लेते थे, थोड़ी देर के बाद ऐसे बैठे रहते थे और फिर आगे दूसरा भोजन करते थे। ऐसे कितने समय तक आपने ऐसा भी किया। और कितने साधु साधु भगवंतों ने तो केवल भात और पानी से आमिल की ओलियां प्रारंभ कर दी। कोई करी आता रूप में रोटी भिगो करके भी आमिल करते हैं। तो ऐसे ऐसे अनेक आराधक रत्न जिन शासन में प्राचीन काल में तो हो गए, वर्तमान काल में, विषम काल में, जहाँ मुंबई में एक गली का नाम भी विचित्र बड़ा है, घाटकोपर में गली है, जैसे नाम क्या है मालूम है आपको? विचित्र नाम, खाउधरा गली। तो खाऊ गली भी उसको बोलते हैं। शाम पड़े बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, सब इडली डोसा वगैरह वगैरह वो खाने के लिए। 50 टाइप का डोसा। 50 जात के तो डोसे होते हैं, बोलो केवल डोसे की 50 वेराइटियाँ होती है। इतनी आहार संज्ञा प्रबल जहाँ हमारी है, ऐसे काल में ऐसे तपस्वी त्यागी आराधक रत्न विद्यमान है, उसकी हम हृदय पूर्वक अनुमोदना और क्या करें, वंदना करें। ऐसी आत्माओं को रोज याद करके, भले अपने घर पे बैठे भी अनुमोदना वंदना करनी चाहिए। हर रोज भोजन करने बैठे ना, तब भी क्या बोलना चाहिए? नमो तवस्य, नमो तवस्य। तव माने तप, ऐसे सम्यक तप। और उसके तपस्वी दुनिया भर में जितने हो चुके हैं होंगे, सभी को हमारा नमस्कार हो। करेंगे इतना, ओम नमो तवस्य। तव माने तप, तवस्य
मैंने सबको और तपस्वियों को मेरा नमस्कार हो। भावपूर्वक वंदना करेंगे तो वंदना ते पाप निकंदना रे, मुनिराज को सदा मोरी वंदना। ऐसे ऐसे और हर रोज भोजन से पहले हो सके तो एक आध केवल क्या करना चाहिए, केवल भात और पानी, ये एक आध केवल इतना तो करेंगे कि नहीं करेंगे, या एक आध रोटी बिना दाल या सब्जी के साथ, केवल रोटी और पानी। हाँ, तो ऐसे आप प्रैक्टिकल प्रयोग करते हुए हम करेंगे तो सच्ची हमारी अनुमोदना होगी। तो कितना जल्द संकल्प करेंगे, जब तक ये नवीन भाई का दर्शन नहीं करे, उनको धन्यवाद नहीं बोले, प्रत्यक्ष रूप में उनकी अनुमोदना नहीं करे वहाँ जा करके, तब एकाध चीज का त्याग। हाँ, ढूंढना हो तो अपना नरेश भाई का संपर्क करें, उनके पड़ोस में तो रहते हैं, आपको एड्रेस पूरा दे दिया है, बरोबर है। उनका नंबर चाहिए तो भी नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। घर में ले जाऊंगा मैं। हाँ, इसको चल रहा है, मैं उनके घर चलो। हाँ, नवीन भाई अपने ले उनके घर, अपने नरेश भाई ले जाएंगे उनके घर पे, और फिर पास में उनका घर, अपने घर में पगला करवा देंगे। करेंगे ऐसा, करेंगे। शादी का है तो 2-4 मिल करके जाओ, तो कभी संग निकालो ऐसा कि चलो 52 जिला का भी दर्शन करें, यात्रा करें, और साथ में ऐसे नवीन भाई का भी कर ले। उनको जरा आगे से बता देते कि भाई हम आ रहे हैं, कि कहीं बाहर कहीं चले गए हो तो आपको धक्का नहीं पड़े। महेश भाई मेरे ख्याल से ज़्यादा तो बाहर जाते भी नहीं होंगे, बड़े तपस्वी हैं। चलो समय हो गया है, अभी कोई नियम नहीं देता हूँ, लेकिन आप हृदय में पूरी पक्की भावना बनाना, इधर से सुन करके इधर से निकाल मत देना, पक्की भावना बनाना कि जल्दी से जल्दी, जिनकी कोई आयुष्य का भरोसा नहीं है, आज है कल न हो। हाँ, इसलिए सुबह से शीघ्र, जल्दी से जल्दी ऐसे विशिष्ट आराधक तपस्वी त्यागी धर्मात्मा का दर्शन, उसकी अनुमोदना, उसको प्रणाम हम करें, उसके द्वारा हम भी हमारे कर्मों की निर्जरा करें और विशिष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन करें और मनुष्य जन्म को सफल बनाएं। यही मंगल भावना के साथ व्याख्यान पूर्ण। जिन्हें कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम। एक मिनट, दर्शन भाई पटेल जी, इसका नाम मैंने लिया, वो एक साप्ताहिक चला रहे हैं, जैन साप्ताहिक, जिसका नाम क्या है मालूम है? साइंस ऑफ। किसी ने देखा है? साइंस ऑफ साप्ताहिक है, हर सप्ताह में एक बार निकलता है, 8 पेपर पे एकदम रंगीन, और ये अपने जैन समाचार ही सब होते हैं। साप्ताहिक है, क्या नाम? साइंस ऑफ। हमारे पास कल उन्होंने कुछ उसकी नकल भी दी है, इसको देखना पढ़ना हो तो देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो ऐसे साप्ताहिक को चला रहे हैं, कुल पटेल होते हुए भी जैन साप्ताहिक चला रहे हैं। कल हमको जब मिले तब भी उनको कहीं विशिष्ट कहीं प्रसंग था, अहमदाबाद में जैन का आचार्य भगवान की बुलाया होगा, तो उनको वहाँ जाना था, जल्दबाजी में थे, फिर भी हमारे उन्होंने कहा, इनको आपको कहा था, कौन ले आए उनको? हाँ, तो आए 5-7 मिनट के लिए, फटाफट उनको जाना था, इसलिए ज़्यादा हम उनकी आराधना के बारे में ज़्यादा हम ले पाए माहिती, लेकिन वो संपर्क करेंगे, वो आजकल में हमको मिलेंगे वापिस, उन्होंने वचन दिया, मिलूंगा मैं, जब और भी उन्होंने उनके जीवन में क्या क्या आराधना है वो हम जान सकेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे हाँ हैं दशरथ भाई पटेल, इनका भी कभी दर्शन करने का भाव रखना, और ये नवीन भाई का तो जरूर दर्शन करने का भाव रखना। चलो। आचार्य गुरुदेव अंतरने वाले बताइए, अंतरने वाले बताइए। आज दिवस सोनानु मारो कियो, आज दिवस सोनानु मारो कियो। पंडर नगरे पधार्या आचार्य गुरुदेव, अंतरने वाले बताइए, अंतरने वाले बताइए। गुरु मोडे सागर सुरी आविया, गुरु मोडे सागर सुरी आविया। सात
સાથે શિષ્ય પરિવાર પધાર્યા, સાથે શિષ્ય પરિવાર પધાર્યા. શ્રી શંકરની આચરિયા અંતરને વાલે વધાવીએ, અંતરને વાલે વધાવીએ. ઉપશ્રય ભક્તિના તોરણ બંધાવું, ઉપશ્રય ભક્તિના તોરણ બંધાવું. મયે તપસ્યાના ચોક પુરાવું, મયે તપસ્યાના ચોક પુરાવું. શ્રદ્ધાની કવોલી પુરાવું, ગુરુદેવ